Good morning, student. Welcome to Roseland International School online education platform. This is Yagyadev Bharadwaj, your physics educator. So, in the sequence of the learning, we are discussing about the second chapter of our unit electrostatic, which named as electric potential and capacitance. So, in the sequence of this chapter, next topic is equipotential surface. So, as you saw on the board, the equipotential is defined as the surface around any charge at which the electric potential due to the charge system is always remains the same, or we can say that the potential around any charge system, the surface at which if the potential remains constant, then the surface is called equipotential surface. For example, if we have a point charge system Q and if we draw a surface at which the potential is always remains same, since we know that due to the point charge the electric potential formula is defined as V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. Okay, so V is inversely proportional to distance R. Now if I draw a sphere around a point charge, so the point which are lie on the surface of the sphere is always same distance apart from the charge. For example, this is P, this is Q, this is R, this is S. So P, Q, R and S, these all points are equidistant from point charge. And we know that the potential is inversely proportional to the distance R. So I can say that due to the point charge Q, the potential at Q, P, R and S is always remains same. So this spherical surface is known as equipotential surface. Okay, so that is our topic called equipotential surface. Now, the property of equipotential surface is, if I move a charge from this point to this point, so does it require any amount of work done? Let's see. Properties of equipotential surface. As we know, the definition of potential difference, Vp minus Vq is defined as W upon Q. So the work done is moving a charge is defined as Vp minus Vq into the amount of charge Q. Go to the example. Since we know that the P and Q on lie are the same distance from the point charge Q, so the potential at Vp is equal to Vq, because equidistance from Q, since the point P and Q both are equidistant from the charge Q, so the potential at P and Q always remains same. If I use the value in this function, so the W is equal to 0. From this result, I conclude that work done on equipotential surface is always 0. Work done on equipotential सरफेस इज 0. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसे सरफेस अवेलेबल है जिस पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो उस सरफेस के ऊपर अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराएंगे तो हमें कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके अगेंस्ट या फिर जो किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के अंदर स्टोर होती है जब हम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर उसको एक्ट करते हैं. तो मतलब अगर मैं पॉइंट चार्ज कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट चार्ज को मैं कंसीडर करूं Q नॉट को, तो Q नॉट को अगर मैं P से लेकर Q तक रोटेट करवा के लेके आऊंगा तो मुझे कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा. तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की. वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. नाउ मूव ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, फॉर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस direction of electric field always normal to
सरफेस। तो ये हमारे पास की सेकंड प्रॉपर्टी है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, हमेशा उसके नॉर्मल होगी। जैसा कि हमारे पास यहाँ अगर हम इस पॉइंट चार्ज की बात करें तो इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस सरफेस के लिए वो क्या है, नॉर्मल आउटवर्ड है। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। Moving further in the sequence of equipotential surface, let's discuss about the equipotential surface due to different charge system. Okay. So the first example in the sequence of the charge system is due to point charge. So as I discussed previously, if I consider a point charge and draw a spherical surface around the point charge P, so the point which are lying on this spherical surface always have same potential. The potential at P is equal to potential at Q is equal to potential at point R. तो Q के अराउंड जो स्फेरिकल सरफेस हमने ड्रॉ किया है, इस स्फेरिकल सरफेस के जो पॉइंट है हमारे पास P, Q, R, इनमें पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो वो सिर्फ R पे डिपेंड करता है। और हम जानते हैं कि स्फेरिकल सरफेस में जो सरफेस है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस रहती है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इसकी रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि P, Q और R पे होने वाला पोटेंशियल क्या है, सरफेस है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे देखते हैं ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल, अब डाइपोल, सिंस वी नो दैट द डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। And now let's see what kind of equipotential we are able to draw due to the dipole. तो डाइपोल की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी उन दोनों चार्ज सिस्टम के अलोंग तो ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो लाइन पे जो सरफेस कैरी ओवर करेगा, ये जो सरफेस आएगा हमारे पास इस रीजन के अंदर, ये रीजन क्या होगा, हमारे पास दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे है और उनमें लगने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारे पास डाइपोल की वजह से एक प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है। तो ये सरफेस हमारे पास क्या है, डाइपोल की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब सेम लाइक डाइपोल की तरह एक दूसरा केस है जब हमारे पास डाइपोल में दोनों चार्ज अनलाइक चार्जेस की तरह अवेलेबल होंगे। डाइपोल के अंदर हमारे पास अनलाइक चार्ज अवेलेबल होते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइक चार्जेस की वजह से किस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू लाइक चार्जेस। तो कंसीडर कर लेते हैं कोई भी दो चार्ज प्लस Q और उन पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरह का रीजन बनाएगा अपने आप को, एक स्फेरिकल रीजन क्रिएट करेगा। तो जो इक्विपोटेंशियल मिलेगी, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा वो क्या होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच वाले रीजन से फार अवे मिलेगा। जैसे ये रीजन है हमारे पास,
ये जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन है, इन्हीं लाइंस पे हमें क्या मिलेगा, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ड्यू टू द लाइक चार्जेस इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइज फार अवे फ्रॉम मिड रीजन, जो इनके बीच का रीजन है उससे फार अवे, इस तरफ या इस तरफ, ये जो सीक्वेंस ऑफ लाइंस है, इन्हीं लाइंस में हमें क्या मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। So these are the basic property of about the equipotential surface and the equipotential surface due to the various charge of system. Our next equipotential surface, which is due to uniform electric field. तो कंसिडर करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। Uniform electric field, the electric field in which the field lines are equidistant from each field lines. तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास आएगी वो एक तरह से प्लेनर सरफेस आएगी विच इज नॉर्मल टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ए बी सी और डी, ये जो सरफेस है ये इसकी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये कैसा है, प्लेनर सरफेस। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास एक परपेंडिकुलर जैसे फील्ड लाइन इस बोर्ड के अलोंग है, तो ये जो मेरा हाथ रखा हुआ है, इस हाथ, ये जो हाथ है ये क्या आएगा, इसके लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर न तो हमें कोई वर्धन करना पड़ेगा और लगने वाला जो पोटेंशियल वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास बेसिक ऑल ओवरव्यू है अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री ऑफ चार्ज सिस्टम बाय व्हिच वी आर एबल टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, लाइक चार्जेस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में जो नोट्स हैं उनमें हमने होमवर्क प्रॉब्लम के लिए हमने कंसीडर किया था, तो उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पोटेंशियल का बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो एक स्क्वायर का एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं एक स्क्वायर है और √2 है उसकी डिस्टेंस है। चार्ज कंसिडरेशन ले लो, वहां यहाँ पे 100 कूलम ए बी सी और डी, यहाँ पे -50 है कूलम, यहाँ पे 60 कूलम ले लो और यहाँ पे -40 कूलम ले लो। तो जो सेंटर है, इस सेंटर पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। अब सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या होता है पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो आता है हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो हमें किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमारा ये पॉइंट O ओरिजिन है, इसका सेंट्रोइड है, या फिर इन दोनों की जो डायगोनल है इनका वर्टेक्स, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले तो वो वैल्यू चार्ज जिसकी वजह से हम पोटेंशियल निकालना है, वो डिस्टेंस r 1/4 पाई एप्सिलॉन के अंदर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो पहले तो इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर ये √2 है, ये √2 है, तो ये √2 इंटू में √2 डिस्टेंस आ गया, √2 मीटर है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, ये स्क्वायर का डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल हमें पता है कि जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है, √2a। a क्या होती है, लेंथ ऑफ द साइड। तो हमारे पास √2 इंटू में a कितना है, हमारे पास √2 मीटर है, तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। और जो हमारा O पॉइंट है वो हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस AO कितनी हो जाएगी, द डिस्टेंस AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO, क्या हो जाएगी, 1 मीटर। तो ये हमारे पास 1 मीटर डिस्टेंस आ गया। नाउ पोटेंशियल फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल, V जो हमारे पास क्या आएगा, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, चारों की वजह से जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, उनके लीनियर एल्जेब्रिक सम के बराबर आएगा। उसका फॉर्मूला लगा देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है RAO प्लस, और Q1 की वैल्यू कितनी है, 100 कूलम है। B की वजह से -50 कूलम अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या आ जाएगी BO प्लस 60 कूलम अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा CO प्लस माइनस 40 कूलम डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DO। अब क्योंकि OA, BO, CO और DO ये सारी डिस्टेंस इक्वल है तो हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। B नेट क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, OA की वैल्यू क्या है 1 मीटर है, 1 मीटर यहाँ रखेंगे तो उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे और बाकी सबको अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। 100 कूलम प्लस माइनस 50 प्लस 60 और माइनस 40, तो ये हो गया 50 40 माइनस 90 110 70, तो कितना आ जाएगा ये 70 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू को जब रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे तो हमारे पास V नेट कितना आ जाएगा, V नेट इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 डिवाइड इंटू में 70, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 63 इंटू 10 की पावर 10, तो V नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6.3 इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू द स्क्वायर ऑफ साइड √2a इन विच दे ऑल द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ABCD आर कंसीडर्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। तो ये सिंपल एक बेसिक प्रॉब्लम है हमारे पास चार्ज सिस्टम के अंदर कैसे कर सकते हैं। आप ट्राइंगल लेके भी एक क्वेश्चन है जिसकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ट्राइंगल कंसीडर कर लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड आपको गिवन है कितना है 2 मीटर और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 2 कूलम, यहाँ पे -3 कूलम और यहाँ पे 4 कूलम, और जो सेंट्रोइड है O, इस सेंट्रोइड का आपको क्या निकालना है पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। और पोटेंशियल क्या होता है तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो एक क्वेश्चन है होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको प्रैक्टिस करके देखना, बहुत इजी है। सेम क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डिटरमाइन किया है। अब बस पोटेंशियल के अंदर क्या है कि उनका वेक्टर एडिशन नहीं है, क्या है हमारे पास लीनियर अलजेब्रिक सम है उनका। तो एक क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करके देखना घर पे किस तरह होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक अरेंजमेंट है चार्जेस का जिसके अंदर -q चार्जेस का एक सिस्टम है, -q प्लस q चार्ज जो सेपरेटेड है अपने आप 0 0 माइनस से 0 0 a पर। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर हमें एक डिफरेंट चार्ज दिया हुआ है q, स्मॉल q नॉट हमें एक चार्ज दिया हुआ है यहाँ पर p पॉइंट पे। अब इस q नॉट चार्ज को p पॉइंट से qs पॉइंट तक लाने में हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना है कि भाई ये जो चार्ज पहले से अवेलेबल है तो -q नॉट चार्ज पे इसकी वजह से क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या है VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। हमें क्या निकालना है वर्क डन W निकालना है, तो W क्या होगा हमारे पास V P माइनस VQ इंटू में Q नॉट वो अमाउंट का चार्ज। तो हमें अगर वर्क डन निकालना है तो हमें क्या निकालना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके बीच में P और S पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा और यही हमें निकालना है। हमें एक चार्ज का सिस्टम दिया हुआ है और P को QS तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें डिटरमाइन करना है। अब इस फिगर ऑफ ज्योमेट्री में अगर हम कंसीडर करें तो ये जो A और B पॉइंट पे अवेलेबल है तो ये हमारे पास क्या है एक तरह से डायपोल का सिस्टम है और डायपोल के सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो y एक्सिस वाली जो x एक्सिस की लाइन है जिसपे P और S पॉइंट अवेलेबल है वो किस पे लाई करते हैं वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे है। और हम क्या जानते हैं इक्वेटोरियल में पोटेंशियल क्या होता है V इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। फॉर इक्वेटोरियल के लिए थीटा क्या होता है π/2 और π/2 होगा तो पोटेंशियल V क्या हो जाएगा 0। So we can say that the potential at point VP क्या हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एट VS क्या हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। इनका पोटेंशियल 0 है क्यों, क्योंकि ये किसी भी डायपोल के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल लाइन एक्सिस पे अवेलेबल है। ये दोनों पॉइंट कहां लाई करते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे अवेलेबल है किसी भी डायपोल के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों में पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास VP माइनस VQ की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। ये इसका क्या है आंसर है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। So this is all from today's class. So just go and rewind the topic of electric potential and electric potential surface and also do the exercise which already solved in your NCERT textbook and unsolved problems based on the electric potential surface.